Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the process for a fine company where designation is Senior Business Analyst and tech stack is Tableau, SQL and Excel. So without wasting any further time, let's move to the process. In this video, we are going to discuss about process, interview rounds, interview question, tips to clear the interview, and at the end, we will discuss expected salary. Okay, let's move to the process. So a fine generally take 5 to 7 working days to complete the process, and if you clear the round, HR will inform you in next 1 or 2 days about your result of your interview. Okay, so how to find the jobs of a fine? So मुझे just एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉल आया है, वो है naukri.com, not about their job portal and about their LinkedIn. Okay, because Afine is a startup based company, so they have like very few job opportunity, and most probably they are looking through the naukri.com. Okay, so check out the naukri.com for their job openings. Okay, now let's move to the rounds. So there are basically two rounds. Okay, and both are technical round, and round one is basically 1 hour round where the discussion about SQL, Tableau and the Excel. Okay, or if I talk about mine, तो मेरा 1 घंटे से भी ज्यादा ही हो गया था, which was around 1 hour and 15 minutes. Okay, and second round is again a technical round, which is again a 1 hour round. वो भी like around 1 hour 20 minutes हो गया था. Then HR round. Okay, दो ही राउंड होते हैं, दोनों के दोनों टेक्निकल. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमेशा कॉमन ही रहते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सीक्वल क्वेश्चन. सो ये जो इंटरव्यू हुआ था, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे वर आस्किंग सम क्वेरीज, अराउंड 5 to 6 क्वेरीज, जो मेरे को याद है वो सब मैंने इसमें मेंशन की है, एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम द टैबल्यू एंड सेम क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सेल एज वेल. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे लाइक एक्सेल को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी गई थी जितनी सीक्वल को और टैबल्यू को दी गई थी. ओके, So now let discuss the question from the sequel. So first question पूछा गया था number of output from joins. Okay. So इसमें मेरे को दो tables दी गई थी. Then interview asked, tell me the number of output from the joins from left join, right join, inner join and full outer join. Okay. तो उसमें कुछ null value थी और I think if I'm not wrong, तो दोनों tables में वन वन रिकॉर्ड थे, राइट. फोर एंट्रीज थी वन की फर्स्ट टेबल में, एंड 3 एंट्रीज थी वन की सेकंड टेबल में. ओके, और दोनों में दो दो नल भी थे. सो फ्रॉम दिस आई हैव टू फाइंड आउट द जॉइंट्स. ओके, फिर सेम ही जब व्हेन आई आंसर्ड फ्रॉम दिस, सो सेम क्वेश्चन में से पूछा गया था कि वही टेबल यूज करनी है. देन टेल मी द नंबर ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग यूनियन एंड यूनियन ऑल. ओके, सो ये भी एक बहुत ही लाइक डिफरेंट क्वेश्चन था मेरे लिए, बट आई नो लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल एंड हाउ they are treating null and other values. So you should be know about this, and I would suggest to कि ये क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए सोल्व करने के लिए. सो यू विल गेट टू नो कि यूनियन से और यूनियन वॉल से कितने रिकॉर्ड्स फेच आउट होते हैं. ओके, फिर एक मेरे को थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे को एक टेबल दी गई थी विच इज हैविंग द रो आईडी and then they are having their salary. Okay, and the table has around 10 records and corresponding to their salary as well, जिसमें कुछ records की salary same थी. So मेरे से पूछा गया था कि assign the rank, dense rank and the row number to these values. Okay, so what rank will do is rank जो दो record same होते हैं उनकी उनको सेम रैंक असाइन करेगा, एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड को एक एक वैल्यू स्किप करके रैंक असाइन करेगा. ओके, और जो डेंस रैंक करता है वो दोनों के सेम रैंक असाइन करेगा, और जो नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट रैंक असाइन करेगा. लेट्स से कि दो रिकॉर्ड सेम सेम लेवल पे हैं, तो और उनकी पोजीशन 2 and 3 है, तो रैंक विल असाइन 2 2 एंड देन 4 टू द नेक्स्ट वैल्यू, बट रैंक डेंस रैंक विल डू इज 2 2 एंड देन 3. ओके, और रो नंबर को लाइक रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो तो जितनी भी उसमें रो नंबर है सबको एक एक रो नंबर असाइन कर दे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो वो ऐसे वो रैंक असाइन कर देगा. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल. ओके, सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. इसमें इसमें जस्ट चेंज क्या होता है, इसमें कई बार थर्ड पूछ लेते हैं, सेवंथ पूछ लेते हैं, एट, वट एवर जो नंबर लाइक रैंडम में कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, एक इसका स्टैटिक मेथड होता है जहाँ पे हम मैक्स सैलरी को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. वो वर्क करता है लाइक फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी. ओके, बट लेट्स से
इंटरव्यू आज कि आपको 8th या 9th हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको बार बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। बार बार कंपैरिजन करने से क्या होगा, कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऑप्टिमाइज कोड नहीं। तो इसके लिए हम लोग सीटी यूज कर सकते हैं और डेंस बाय यूजिंग डेंस रैंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इन सब का मैं एक एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दैट। ओके, फिर जो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड डेज हुज टेम्परेचर इज हायर देन द प्रीवियस डे। ओके, सो ये क्वेश्चन जब मैंने ट्राई किया था, ये टू बी फ्रैंक ये मेरे से सोल्व नहीं हुआ था, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू डू दैट। फिर आफ्टर आफ्टर सम टाइम इंटरव्यू आस्क ओके लेट्स मूव टू द टैब्ल्यू। ओके, सो ये मेरे से सोल्व नहीं हुआ था। देन आई चेक आउट, सो ये क्वेश्चन लीड कोड से है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसका भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, मे बी शायद जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मे बी यू विल फाइंड डिफरेंट डेफिनेशन एट अ स्टैंडर्ड लेवल, बिकॉज ये मैंने अपनी वर्डिंग में, जो मैं अपनी आफ्टर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो जो भी मेरे से क्वेश्चन हो जाए, वो मैं सब अपने एक एक नोटबुक में लिखता हूँ। सो वही मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऐसे डायरेक्ट। ओके, सो प्लीज डोंट गो ऑन द वर्डिंग और लाइक definition or like proper question. Maybe you will find a better standard definition for that question, okay, on the Google, but you will get the idea from here. Okay, तो ये 6 क्वेरी मेरे से पूछी गई थी फ्रॉम सिक्वल। सो इसी में ही लाइक मेरा अराउंड 35 मिनट्स अराउंड मेरा इसी में ही चला गया था। ओके, इंक्लूडिंग माय इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। ओके, फिर मेरे से टैब्लू से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द टाइप ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल इन टैब्लू। ओके, अगर ऐसे सुनने में थोड़ा सा ये लगता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ कनेक्शन, बट इफ यू नो लाइक देयर आर 2 टाइप ऑफ कनेक्शन अवेलेबल इन टैब्लू, दैट इज लाइव एंड एक्सट्रैक्ट। सो एक बार के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया था, लाइक व्हाट आर कनेक्शंस अवेलेबल इन टैब्लू, देन आई केम टू नो ओके सो देयर आर लाइव एंड एक्सट्रैक्ट कनेक्शन इन द टैब्लू। सो कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं लाइव वर्सेस एक्सट्रैक्ट, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि टाइप ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल इन द टैब्लू। ओके, सो यू शुड नो both the questions, but both are same. Okay, so next question पूछा गया था, what is blue and green value represent in the tableau. Okay, blue value represent discrete value and green value represent continuous value. Okay, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, कैन वी कन्वर्ट डायमेंशन इनटू कंटिन्यूअस, if yes give an example. Okay, so if you load the sample superstore data set, so you will, if you try to convert any string value, you will not able to convert into continuous value. Okay, so we can convert the date field to the continuous value. Okay, example for that is date field. Okay, and answer for that is, can we convert dimension into continuous? Yes, and example is date field. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ वी हैव ऑर्डर डेट एंड सेल्स, विच चार्ट विल बी सुटेबल फॉर दिस। ओके, सो इफ वी आर यूजिंग द डेट, फॉर डेट के साथ हमेशा वी आर यूजिंग लाइन चार्ट। ओके, बिकॉज लाइन चार्ट इज यूज टू शो द ट्रेंड ओवर द टाइम। ओके, सो इसका आंसर होगा लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशनशिप वर्सेस डेटा ब्लेंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता आया हूँ, लाइक रिलेशनशिप वर्सेस डेटा ब्लेंडिंग, और मे बी रिलेशनशिप वर्सेस जॉइन, और डेटा ब्लेंडिंग वर्सेस जॉइन। ओके, सो these three topics are very important in every interview, so you should be know like what is the main difference between them. Okay, so इनका मेन डिफरेंस ये होता है कि इफ यू लुक एट द डेटा ब्लेंडिंग वर्क्स विद द वन टू वन रिलेशनशिप वेरी वेल. ओके, व्हेन देयर इज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप, data blending give asterisk value. Okay, to overcome this problem, Tableau has introduced relationship. So relationship में we can establish one to one, one to many, many to one. Okay, so we can establish all type of relationship. एक तो ये होता है, और second इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो डेटा ब्लेंडिंग होता है ना, दैट वी कैन यूज डेटा ब्लेंडिंग फॉर पब्लिश डेटा सोर्स दैट इज पब्लिश ऑन योर टैब्लू सर्वर. ओके, बट रिलेशनशिप डजंट वर्क विद अ पब्लिश डेटा सोर्स. ये बहुत ही लाइक प्रीमियम मैं बोलूंगा इसको डिफरेंस है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है. ओके, सो यू शुड बी नो बोथ, इफ यू मेंशनिंग बोथ पॉइंट, सो दैट विल गिव अ ह्यूज इम्पैक्ट. ओके, तो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इफ टू मेजर्स हैज डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज, विल इट बी पॉसिबल टू परफॉर्म ड्यूअल एक्सिस? आंसर इज यस, बिकॉज अगर हम ड्यूअल एक्सिस कर भी देते हैं, सो देयर इज अ ऑप्शन टू सिंक्रोनाइज द एक्सिस, ताकि वो दोनों एक ही सिंक में हो जाए एक्सिस. ओके, सो द आंसर इज यस. तो ये क्वेश्चन में से पूछे गए थे टैब्लू से. फिर एक्सेल से पूछे गए थे. टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन द एक्सेल, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था. सो फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि व्हाट इज वी लुकअप. आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन एट दैट टाइम, सो मैंने उसका सिंटेक्स लिख के बताया था कि इसमें हम कैसे कैसे इसमें वैल्यू फेच आउट करते हैं. ओके, फिर मेरे से सेकंड पूछा गया था इंडेक्स मैच फंक्शन. सो इंडेक्स मैच फंक्शन आई वाज नॉट अवेयर दैट टाइम कि हाउ वी कैन यूज इंडेक्स मैच फंक्शन.
तो आप लोगों के इजी करने के लिए आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ एवरी क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे आपके लिए सोल्व करने बैठूंगा तो द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग, सो वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ टू रिफ्रेश डेटा इन द पिवोट टेबल, सो इसका मैंने आंसर दिया था। एंड हाउ टू गेट न्यू कॉलम्स इन द पिवोट, इसका भी मैंने आंसर दिया था, ओके। सो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था। बट आई गोट द फीडबैक फ्रॉम द एचआर इज कि योर एक्सेल इज नॉट अप टू द मार्क, ओके। तो वर्क ऑन दैट। सो बट सिक्वल और टैबलू के लिए अच्छा फीडबैक आया था। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा कि अफाइन का मेरा इंटरव्यू अब तक का ऐसा इंटरव्यू गया जहां मुझे इंटरव्यू के बाद फीडबैक मिला है, ओके, अबाउट माय ऑल द टेक्नोलॉजी। सिक्वल के लिए अच्छा मेरा फीडबैक गया था, टैबलू के लिए अच्छा गया था, एक्सेल के लिए नॉट अप टू द मार्क, वो एक एवरेज लेवल पे था, ओके। सो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मुझे बोला गया था कि प्लीज वर्क ऑन योर एक्सेल एज वेल, ओके। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड टू मी इन राउंड 1। लेट्स मूव टू द राउंड 2। राउंड 2 में भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही था, इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन, ओके, ये तो हमेशा सेम ही रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द सीक्वल। सो यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न था, सीक्वल, टैबल्यू एंड एक्सेल, ओके। सो तो सीक्वल से में से पांच पांच क्वेरी पूछी गई थी। मुझे ये सब इसलिए याद रहता है क्योंकि आफ्टर इंटरव्यू आई विल नोट डाउन एवरी क्वेश्चन इन माय नोटबुक, ओके। मेरे पास एक पूरी नोटबुक है जहाँ पे मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए आज तक सबके मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड 2 consecutive days, ओके। तो बेसिकली इसमें पूछा गया था कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने 2 दिन लगातार एक चीज ऑर्डर की है, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ओके। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से। इसका मैं आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, ओके। एक प्रोडक्ट है एंड देन एवरेज सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट तो इसके लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन फिर सेम पूछा गया था कि नंबर ऑफ आउटपुट्स यूजिंग जॉइंट्स, बट इसमें टेबल्स डिफरेंट थी अब की बार, ओके। बट तो इसका भी मैंने आंसर दिया गया था, लाइक इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ डेफिनेशन होते हैं, अगर आप वो याद रखोगे तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे वो कुछ भी हो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा एग्जैक्ट नंबर निकलेगा, ओके। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ओके। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय पर डिपार्टमेंट, ओके। सो ये क्वेश्चन ओल्डेस्ट एम्प्लॉय पर टेबल निकालना लाइक सही है, ओके। वो बहुत ही इजी हो जाता है, बट इसमें एक कंडीशन थी पर डिपार्टमेंट होना चाहिए, ओके। ग्रुप बाय करके पर डिपार्टमेंट आप ओल्डेस्ट एम्प्लॉय निकाल सकते हो, ओके। सो ये भी, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था काउंट ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन द सीक्वल, ओके। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सो बी रेडी विद दिस। काउंट ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ सकता है, साथ में इसका ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ वी कैन डिलीट दैट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन द सीक्वल, ओके। सो ये कई बार ये दोनों क्वेश्चन साथ में पूछ लेते हैं, कई बार सिंगल सिंगल भी पूछ लेते हैं, सो बी रेडी विद दिस। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड टू मी इन SQL पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। लेट्स मूव टू द टैबलू। टैबलू से पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था बिकॉज फर्स्ट मेरा टेक्निकल टेस्ट हो चुका था, तो फिर भी यहाँ पे लाइक एवरी एवरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग मेरे को टेस्ट कर रहे थे, ओके। सो यहाँ पे rather देन आस्किंग अबाउट टैबलू के कंसेप्ट, दे आर आस्किंग अबाउट more about like process, like how we can resolve the performance issue and other things, okay, some scenario questions, okay। तो पहला क्वेश्चन में से पूछा गया था कि हाउ टू रिजोल्व परफॉर्मेंस इशू इन द डैशबोर्ड, ओके। इसका मैं आंसर पिछली वीडियो में कर दे चुका हूं, सो यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस इन दिस सीरीज, ओके। फिर भी मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं। मल्टीपल वेज में कर सकते हैं, रिलेटेड टू डेटा सोर्स, रिलेटेड टू कैलकुलेशन, रिलेटेड टू चार्ट्स, लेट हाइड द डेटा फील्ड्स, ओके। एंड you can use the performance recorder, so from there you can check out कि कौन सी स्टेट कौन सा क्या इश्यू जनरेट कर रहा है, ओके। तो वहां से आप इसकी एक स्टोरी बना के, मैं हमेशा जो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना उनके लिए हमेशा एक स्टोरी बना के रखता हूँ। लेट्स से कि ये क्वेश्चन है, इसको मल्टीपल वे में पूछ सकते हैं, हाउ टू रिजोल्व परफॉर्मेंस इशू, या फिर डायरेक्ट बोल देते हैं कि कुछ डैशबोर्ड इज टेकिंग टाइम, हाउ यू कैन रिजोल्व दैट issue of that, how you can speed up the performance of the dashboard। so ये बहुत ही लाइक कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट कि ये क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। जब ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू आते ही हैं तो व्हाई नॉट बी रेडी विद अ गुड स्टोरी विद दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि व्हेन वी रिप्लेस द डेटा सोर्स इन द डैशबोर्ड एंड in the new data source we have different names as compared to existing data source field, okay, and Tableau is showing error on the every field, how we can resolve it if you have worked on replacing the data source। let's say कि हम लोग सैंपल सुपर सोर्स डेटा सोर्स पे काम कर रहे हैं, ओके, और हमें उसको दूसरे डेटा सोर्स से रिप्लेस करना है, डेटा सेम है
दूसरे डेटा सोर्स में, बट फील्ड नेम डिफरेंट है। ओके, तो जब हम उसको लोड करेंगे या फिर उसको रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स को, अगर टैब्ल्यू का नेम सेम नहीं दिखेंगे ना, तो वो हर फील्ड पे एरर दिखाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिखाएगा। ओके, कि मेरे को सेम नेम नहीं मिले हैं, सो वहां पे एरर आएगा। ओके, सो उसको इश्यू को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? तो टैब्ल्यू में एक फंक्शन होता है, एक फंक्शनलिटी होती है टैब्ल्यू की, रिप्लेस रेफरेंस। ओके, आप बाय यूजिंग रिप्लेस रेफरेंस यू कैन रिप्लेस दैट एग्जिस्टिंग फील्ड विद द न्यू फील्ड। ओके, सो वहां पे फिर वो एरर रिजोल्व हो जाता है। तो इसका आंसर होता है बाय यूजिंग रिप्लेस रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन व्यू वी हैव रीजंस कंट्री विद द सेल्स, आई वांट टू सी टॉप 5 कंट्रीज फ्रॉम ईच रीजन। ओके, हाउ यू कैन सोल्व इट? ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने अपनी सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में डाला हुआ है। ओके, इसमें ना दो तरीके से सोल्व हो सकते हैं ये क्वेश्चन। एक तो वो होता है कि हम यूजिंग कंटेक्स्ट फिल्टर हम इसको शो कर सकते हैं, बट उसके साथ लिमिटेशन क्या होती है कि लेट्स से यू हैव अ 4 रीजंस। ओके, जब आप पर रीजन सेलेक्ट करोगे तो वो टॉप 5 शो करेगा, जब वहां पे आप ऑल सेलेक्ट करोगे ना, तो वो चारों की पांच पांच टॉप कंट्रीज शो करेगा, ना कि पर रीजन 5 कंट्रीज। ओके, तो उसको उसकी एक ड्रॉबैक्स होती है, उसको रिजोल्व करने के वी विल यूज इंडेक्स इन दैट। ओके, तो उसकी मैंने एक डिटेल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर दो तीन क्वेश्चन और में से पूछे गए थे रिलेटेड टू टैब्ल्यू, लाइक हाउ यू क्रिएट द डैशबोर्ड, ओके, हाउ यू गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट। ये बहुत ही लाइक एवरी इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो रेदर देन मेंशनिंग हियर, तो वो मैंने मैंने सोचा कि आई से दिस कि ये क्वेश्चन और पूछे गए थे। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछे गए थे टैब्ल्यू से। फिर एक्सेल से मेरे से पूछे गए थे some again very difficult question for me because I'm not so much expert in the first question पूछा गया था find cumulative sum in the Excel। okay, ये मेरे को नहीं आता था बेसिकली, तो आई said no कि मेरे से नहीं आता है। so how to remove the blank from the table, ये मेरे को आता था। okay, फाइंड डुप्लीकेट ये भी मेरे से नहीं हुआ था। हाउ यू प्रिवेंट ग्रैंड टोटल एंड द सब टोटल्स फ्रॉम द पिवोट टेबल। ओके, ये भी मेरे से हो गया था सोल्व। ओके, हाउ वी कैन डू इट। इसके साथ मेरे से तीन चार क्वेश्चन और पूछे गए थे एक्सेल से, सो वो भी मेरे से सोल्व नहीं होते बिकॉज इंटरव्यू बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं। सो इन 2 or 3 days यू कांट मास्टर अ स्किल। ओके, एक्सेल एक बहुत ही वास्ट चीज है, यू कैंट लर्न एवरीथिंग इन 1 or 2 days। सो ये मेरे से सोल्व नहीं हुए थे। बेसिकली एक्सेल से मैंने, मुझे याद है जो मैंने 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से मैं एक या दो ही आंसर कर पाया था। ओके, इसके बाद आपको फीडबैक बताना चाहता हूँ। सो व्हाट आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम द एचआर इज आफ्टर राउंड 2 इज कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। ओके, क्योंकि दे वर लुकिंग कि जिनको तीनों ही स्किल्स आनी चाहिए। मेरा टैब्ल्यू के लिए और सीक्वल के लिए बहुत अच्छा फीडबैक गया था, बट अगेन एक्सेल के लिए लाइक दे एक्सेल इज नॉट अप टू द मार्क, सो दे हैव रिजेक्टेड मी। ओके, तो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस कि ताकि आपको ये ना लगे कि जितनी भी मैं वीडियो लाइक बना रहा हूँ उनमें सब में मेरा इंटरव्यू क्लियर है। नहीं, सब में नहीं होता है, क्योंकि एवरी कंपनी हैज देयर डिफरेंट स्टैंडर्ड, देयर डिफरेंट डिमांड। लाइक now I know I'm good in Tableau and the SQL, but I'm not good in Excel. So after that I started working on the Excel as well कि जो जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने थोड़ा सा और लर्न किए। Still I'm learning. I'm not saying like I'm expert in the Excel, but still I'm learning. Okay, so if you are going for any product based company or any startups, okay, जो भी उनका स्किल सेट मेंशन है ना, तो आपको वो सब कुछ, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें, तो आपको वो हर पैरामीटर पे जज करेंगे। ओके, तो वो सब सब कुछ ही आपको आना ही चाहिए। ओके, और वैसे भी ये पोजीशन सीनियर बिजनेस एनालिस्ट थी और इनको एक्सेल चाहिए था, तो इसलिए इन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड टू मी इन राउंड 1 एंड राउंड 2। so now let's move to the tips for this video is be clear with your answer. Okay, so why I'm saying this, like if you are explaining your project, if you should only say those words on which you are very confident. Okay, let's say you are saying like I have used parameters or sets groups in my project, I have used advanced chart. Okay, if you are saying advanced chart, you should know what kind of advanced chart you have used, and if you are saying advanced chart, you can expect 1 or 2 questions based on that advanced chart. And interview will ask like which kind of advanced chart you have used. So don't say anything that you don't know.
Okay, so if you don't know, if you are saying like I have used advanced chat and you are not aware and you just use only one advanced chat, so that doesn't make any sense. Okay, you should be aware about multiple advanced chat. Okay, so for tips for this video is be clear with your answer. Okay, and same goes for the Tableau concept as well. If you are explaining any of the Tableau concept, so be clear with that definition and don't make it very complex for the interviewer as well. Okay, so this is the tips for this video. Now let's move to the expected salary. Okay, so expected salary, so as all of you know, like I have given the interview when I'm having the 4 years of experience, so I'm giving the range for 3 to 6 years. Okay, and the expected salary for this video is 14 to 20 LPA. As it is startup, they are giving everything in the fix. Okay, so you can expect 14 to 20 LPA per annum from Affine. Okay, that could be increased if you are having a multiple offer letter, that is terms and condition applied. Okay, so I think that's it for this video. Thank you so much, guys. If you like the video, please do like, share, and subscribe. And if you have any question, concern, and you want to connect with me, you can connect with me on the LinkedIn as well. And stay tuned for upcoming videos.